નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીએસટીવીની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું દેવાંગ. દર્શક મિત્રો, ધ રિયલ ડિબેટમાં આજે એક એવા વિષય ઉપર ચર્ચા કરવી છે. આ એક એવો વિષય છે કે જે ભારતની આઝાદી સમય સાથે જોડાયેલો વિષય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે એક સમય જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થવાની વાતો થતી હતી ત્યારે બીજી તરફ પાકિસ્તાનને અલગ થવા પર મંથન થઈ રહ્યું હતું. પરંતુ એવા જ સમયે ભારતના પૂર્વોત્તરના કેટલાક રાજ્યો હતા જે પોતાને ભારતથી એક અલગ દેશ તરીકે જોવા માંગતા હતા. જોકે ત્યારબાદ ત્યારના નેતાઓએ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે તે રાજ્યોના વડાઓને સમજાવ્યા અને મોટા ભાગના વડાઓ સંમત પણ થયા અને તે ભારત સાથે તેમનો વિલય પણ થયો છે. પરંતુ ત્યારબાદ જે નાગા નેશનલ કાઉન્સિલ એટલે કે એમએનસી જે હતું એ ભારતમાં જોડાવા તૈયાર નહોતું. ત્યારબાદનો જે આખો સિલસિલો છે એ તમામ સિલસિલા વાર આપણે આજે વાત કરવી છે, કારણ કે ઉલ્લેખનીય છે કે નાગાલેન્ડ સમજૂતીથી જોજનો દૂર છે. જો નગા શાંતિ વાર્તા તૂટી પડે તો શું થાય? કારણ કે નાગાલેન્ડમાં 1950ના દાયકાથી સશસ્ત્ર સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે અને 1975માં એક સમજૂતી પણ થઈ. પણ આ સમજૂતી પછી બીજી તરફ જે એક જૂથ જેને NSCN-IM જે છે એવું કહેવાય છે કે ચીન તેને તાલીમ અને શસ્ત્રો પણ આપી રહ્યું છે. ડિસેમ્બર 2021ની અંદર ખોટી એટલે ઓળખના પેલાને લઈને 14 નિર્દોષ નાગરિકોના મોત પણ થયા અને ત્યારબાદ ત્યાંથી અફસ્પાને હટાવવાની પણ વાતો થઈ. પણ સમજવું છે આજે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કે ખરેખર જે નગા શાંતિ સમજૂતી કરાર હતા ક્યારે થયા, કોણે કર્યા, કેમ આ કરાર તૂટવાની અણી ઉપર અત્યારે આવી ચૂક્યા છે, શા માટે નગા અલગ દેશ ડિમાન્ડ કરી રહ્યું છે, ત્યાં પેરેલલ ત્યાં સરકાર ચાલી રહી છે. તો આ સમગ્ર બાબત શું છે તેને ઝીણવટપૂર્વક સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ આજે આપણી આ વિશેષ રજૂઆત શાંતિ વાર્તા પર ગ્રહણમાં. આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા મારી સાથે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી 3 મહાનુભાવો જોડાયા છે. ડોક્ટર અમિતભાઈ ધોળકિયા કે જેઓ વિદેશી બાબતોના નિષ્ણાત છે, બીજા એન સત્યજીતસિંહ કે જે સત્યજીતજી વરિષ્ઠ પત્રકાર છે મણિપુરમાંથી અને તેઓ ખાસ જ્યારે આપણે આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે ત્યારે આ બાબતને લઈને તેઓ ઊંડો અભ્યાસ ધરાવે છે. અને આપણા ત્રીજા મહાનુભાવ છે ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ આપણી સાથે જોડાયા છે. ત્રણેય મહાનુભાવનું સ્વાગત છે. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરું એ પહેલા એક મુદ્દો મારે એ મૂકવો છે કે આજે આપણે જ્યારે આપણી સાથે એન સત્યજીતજી જોડાયા છે, ત્યાંના વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, આ ફિલ્ડ ઉપર જઈને પણ તેમણે નજીકથી આ પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કર્યો છે, ત્યારે આપણું જે કન્વર્ઝેશન છે એ હિન્દી અને ગુજરાતી મિક્સ રાખીશું જેથી સત્યજીતજી પણ સમજી શકે કે આપણે શું કહી રહ્યા છે. તમામ મહાનુભાવનું સ્વાગત છે. વ્યાસજી, આપનેથી શરૂઆત કરીએ તો જે આ આખો વિવાદ છે આપણા દેશની પૂર્વોત્તર રાજ્યોની સીમાઓનો, નાગા સશસ્ત્ર બળવાખોર સંગઠનોની સમસ્યા કેમ ઊભી થઈ, સૌથી પહેલો સવાલ એ, અને એમાં સમયાંતરે શું શું ફેરફારો થયા? देवांग जी, मूलतः बात यह है कि ये जो प्रश्न है वो शायद भारत आजाद हुआ उसके साथ थोड़ा सा पहले से पैदा हुआ है. नागालैंड के जो लोग हैं जिनको नागा बोलते हैं वो ब्रिटिश इंडिया के भाग भी उनको नहीं समझते थे और इसलिए जब हम स्वतंत्र हुए तभी से ये मसला कहीं ना कहीं उठता है, सशस्त्र मुठभेड़ होती है और कुछ समझौती तक आने के बाद समझौती टूट जाती है. उनकी जो जहां तक मेरी मर्यादित समझ है, इनकी एक बात कि जो नागा नेशनल काउंसिल એટલે એમએનસી ભારતમાં જોડાવા તૈયાર નતા, મીન્સ वो लोग इंडिया के साथ part of India dissolving themselves, they were not very much willing. And their demand was, and that is throughout. I mean, if nothing has changed, at least in this, is the demand that Nagaland should be given a separate constitution, separate flag, and a separate nation's status. So this is the root cause. I mean, you look at all the kind of dialogues that has gone between different groups and different warring factions with India. The central theme is that we must be recognized as a
separate nation. We should have a separate flag, and we should have our own constitution. And that is not with India, but that is with India as a separate country. So this is the root cause. And when you have this as a root cause, no matter whatever is decided about, जो भी आप किसके भी साथ चर्चा करते हैं, वो कभी न कभी तो फेल होनी ही है. दूसरी बात है, इसमें शुरुआत में एक ग्रुप था, बाद में उसमें से एक में से तीन हुआ. फिजो का नाम तो मैं मानता हूं कि घर घर में लोग जानते थे. फिजो वेरी कद्दावर नेता थे, वो वहां के नागालैंड के. और उसके बाद जो भी आए वो एक या दूसरे फॉर्म में अलग अलग नाम से तीन ग्रुप बन गए, और वो भी सशस्त्र अपना काम करते रहे, भारत के खिलाफ काम करते रहे. अब बात यह है कि सिर्फ यहां तक ही रुका नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल गवर्नमेंट चलती है नागालैंड में. और वो लोग जो हैं वो सेपरेट टैक्स भी वसूलित करते हैं, जिसकी रिसिप्ट के ऊपर लिखा होता है रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम द पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड रुपीज सो एंड सो टुवर्ड्स सच एंड सच पेमेंट. दैट मीन्स व्हेन यू हैव ट्रेजरी अपनी खुद की आपने चालू की है, व्हेन यू हैव योर सिक्योरिटी फोर्सेज और डिफेंस फोर्सेज which are separate under your control, what else will make you to merge with India? So I think that this is if you look at 1950, so just to make the calculations simpler, 72 साल से ये कश्मकश चल रही है. आज तक इसका कोई ऐसा हल नहीं पाया गया जो सबको मंजूर हो और सबको एक तरह से भारत की नागरिकत्व के साथ जोड़ सके. अब ये जो मुद्दे हैं वो मैं मानता हूं कि आज अगर हम चर्चा करते हैं और करेंगे तो उसमें सत्यजीत जी का रोल और उनसे इनपुट जो मिलेंगे, वो मानता हूं कि वो वहां मैदानी हकीकतों से मेरे से ज्यादा माहिर है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है. तो और प्रोफेसर अमित भाई भी अपने आप में एक स्कॉलर है. ये मुद्दे उनके जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसमें आते हैं, फॉरेन पॉलिसी एंड द इश्यूज रिलेटेड विथ समथिंग और दिस. एक और बात उसमें जुड़ गई है, वो चाइना टेकिंग इंटरेस्ट. चाइना सिर्फ मिजोरम में, चाइना सिर्फ अरुणाचल में नहीं है. अरुणाचल में तो करीब करीब वो मानते हैं कि वो तो हमारा ही देश है. अब ये जो एक फैक्शन है नागालैंड के जो लोग जो लड़ रहे हैं अपनी मांगों के लिए, वो फैक्शन को चाइना सप्लाई करता है, आर्म्स वगैरह ट्रेनिंग भी देता है. तो एक तरीके से ऑलरेडी आप देखिए, पूरा कश्मीर से शुरू करो, जब हम आजाद कश्मीर की बात करेंगे वहां से निकलते तिब्बत, भूटान और फिर नीचे आओ आप तो मैं मानता हूं कि म्यांमार में भी चाइना का काफी हस्तक्षेप है. और अपने यहाँ अरुणाचल को तो चाइना अपना ही मानते हैं. उन्होंने कुछ विलेजेस भी बसाए, पक्के रोड बनाए हैं. तो वहां से अगर यहाँ आना हो तो ये मुश्किल नहीं है. और ये जो पूर्वांचल के जो राज्य हैं वो भारत के साथ चिकन नेक से जुड़े हैं. आप वो 15-20 किलोमीटर का जो पट्टा है वो काट दो तो दीज स्टेट्स विल बी independent on their own. It will be very difficult to penetrate them because एक साइड पे बांग्लादेश का जो शिखर ऊपर जाता है और फिर यूं करके नीचे आता है. तो कई कॉम्प्लेक्सिटीज आर नाउ द पार्ट ऑफ दिस डिस्कशंस, एंड आई पर्सनली फील विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि इसका कोई कॉमन हल निकले वो अभी तो नहीं पॉसिबल लगता है. चीन भी उसमें राजी नहीं होगा. चीन चाहेगा कि ये कुछ न कुछ हमारे वहां गड़बड़ चलती रहे. तो ये पूरी सीमा हमारी कम से कम
एजिटेटेड बाउंड्री है। कहीं जगह पे तो लश्कर चाइना का और हमारे लश्कर के बीच में मुठभेड़ भी हुई है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं नहीं मानता कि इसका हल हम जल्द ही चाहे हम चाहें मगर वो शक्य हो, ऐसा लगता नहीं है। दिवांग भाई। बिल्कुल। मैं सत्यजीत जी के पास जाऊं उससे पहले अमित भाई आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। ये नागा फेडरल गवर्नमेंट क्या है? જેમ કે વ્યાસજીએ કીધું કે એક સમાંતર સરકાર ચાલી રહી છે, ત્યાં ભારત સરકારની સાથે ત્યાં પણ એક સમાંતર સરકાર ચાલી રહી છે, ત્યાં પણ ટેક્સ ઉઘરાવવામાં આવી રહ્યો છે, શું આ વાત સાચી છે? દેવાંગભાઈ, તમારી વાત સંપૂર્ણપણે સાચી છે. ભારતનું બંધારણ આમ તો સાર્વભૌમ છે ભારતના તમામ પ્રદેશો ઉપર, પરંતુ એક રાજ્ય એવું છે ભારતનું કે જ્યાં આપણે આ એક પેરેલલ સરકાર લગભગ છેલ્લા 4 દાયકાથી જોઈ રહ્યા છીએ. ફીઝો જે નાગાલેન્ડના સેપરેટિસ્ટ મૂવમેન્ટના લીડર હતા, એમણે આ નાગા ફેડરલ ગવર્નમેન્ટની સ્થાપના કરેલી અને ત્યારથી જ ત્યાં સમાંતર સરકારની એક વ્યવસ્થા अस्तित्वમાં છે. माफ कीजिए, हमें हिंदी में बोलना था लेकिन मैंने गुजराती में शुरू कर दिया. जी जी. तो मैं जो कह रहा था वो ये बात है कि पिछले लगभग 4 दशक से ये NSCN की पैरेलल गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है उसके साथ वहां पर अस्तित्व में है. और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं, ये कोई ऐसी सीक्रेट गवर्नमेंट नहीं है कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं है. बल्कि जो सबसे आश्चर्य की बात है, हम सब के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए भी जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि ये पैरेलल गवर्नमेंट और उसके जो फंक्शनरीज है उसके अस्तित्व के बारे में, उनकी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में भारत सरकार और हमारे सैन्य के लोगों को भी इसके बारे में पता है पूरा कि ये कौन लोग हैं जो वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं. परंतु शांति समझौते की रिस्पेक्ट करते हुए और वहां पर स्थिति ज्यादा बिगड़े नहीं, इसलिए कुछ हद तक तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कोशिश करते हैं कि ये पैरेलल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पर नियंत्रण लाया जाए. परंतु एक हद के आगे वो भी ये पैरेलल गवर्नमेंट द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, और मूल रूप से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है लोगों से, बिजनेसेस से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से भी, वो प्रवृत्ति वहां पर एक तरह से रोक टोक किए बगैर चलाने दिए जा रही है. और सब जानते हैं कि नागालैंड के सरकार के जो एम्प्लॉइज है, एक बात तो यह है कि वहां के मिनिस्टर्स को भी वो टैक्स देना पड़ता है और ये टैक्स की रकम भी बहुत ऊंची होती है. 15%, 25%, 30% जितना टैक्स वहां की ये पैरेलल सरकार द्वारा जो NSCN की है उसके द्वारा लिया जाता है. नागालैंड में जो भी गुड्स आते हैं उसके ऊपर भी ड्यूटी भरनी पड़ती है ये इंसर्जेंट ग्रुप्स को. गोडाउन में जाता है तो गोडाउन में भी आपको दूसरा टैक्स भरना पड़ता है. जब गोडाउन से माल दुकान में जाता है तो दुकान में भी एक तीसरे लेवल का टैक्स भरना पड़ता है. और ये पूरा, इसको टैक्स नहीं कह सकते, ये एक्सटोर्शन. टैक्स शब्द तो लीगल गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये तो एक पूरा एक्सटोर्शन नेटवर्क चलता है. बिल्कुल. और नागालैंड के लोगों के लिए जो ज्यादा एक जो मुश्किल की बात है वो ये है कि ये एक्सटोर्शन है वो सिर्फ एक ग्रुप के द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि वहां पर लगभग 9 ग्रुप है. NSCN मूविया वाला ग्रुप अकेला ग्रुप नहीं है कि जो ये एक्सटोर्शन करता है, उसके अंदर में भी अलग अलग फैक्शंस है, उसके बाहर भी अलग अलग फैक्शंस है. ओके. सो नागालैंड का जो एक आम नागरिक है, वहां का जो एक आम बिजनेसमैन है, उसको भारत सरकार और राज्य सरकार को तो टैक्स देना ही है. उसके अलावा लगभग 9 अलग अलग जूथ है इंसर्जेंट्स के जिसको उसको टैक्स देना पड़ता है. तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद
वो आदमी के पास कितना अपना खुद का पैसा बचेगा। अच्छा, ना इसका जो सीधा असर हुआ है वो ये है कि वहां पर बहुत मैसिव करप्शन नागालैंड में पाया जाता है, क्योंकि आमदनी की एक बहुत बड़ी मात्रा आपको इलीगल एक्सटोर्शन में देनी पड़ती है। तो करप्शन भी, जो लीगल सिस्टम है टैक्स की, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। और ये करप्शन से भी ये जो टेररिस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा व्यवहार चलता है। एक अंदाज के हिसाब से NSCN का खुद का एनुअल बजट लगभग 200 करोड़ रुपया है। अभी आप समझ सकते हैं कि नागालैंड की पॉपुलेशन 20 लाख भी नहीं। अभी जो राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख नहीं है, वहां का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगर एनुअल बजट 200 करोड़ जितनी हो तो उसका सोर्स क्या हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि कितना वाइड स्प्रेड एक्सटोर्शन यहाँ पर हो रहा है। और हमारे सैन्य के लिए भी ये रोकना मुश्किल है, क्योंकि आप कैसे रोकोगे, आप कितने लोगों को अरेस्ट करोगे, आप कितने लोगों को मारोगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वगैरह के चार्जेस हमेशा ये नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप्स द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए हैं। और जो 2015 में फ्रेमवर्क अकॉर्ड हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने भी सैन्य को एक नियंत्रित रूप से काम करने का वहां पर आदेश दिया हुआ है। तो हम जब ये सब बात देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो जरूर एक मन में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो भारतीय संविधान और उसके सार्वभौमत्व की हम जो बात करते हैं, जिसके नाम पे हम सौगंध लेते हैं, जिसके लिए हम अपनी निष्ठा बार बार प्रकट करते हैं, भारत का एक प्रदेश है कि जो लगभग श्रीलंका में जैसी सिचुएशन नॉर्दर्न पार्ट में हुई थी कि LTTE द्वारा एक पैरेलल सरकार चलाई जाती थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के भी जो फाटा एरियाज है और कुछ हद तक बलूचिस्तान वगैरह में जो ट्राइबल एरियाज है, वहां पर पाकिस्तान की सरकार भी इसी तरह की पैरेलल गवर्नमेंट की सिचुएशन फेस कर रही है। हमारे भारत में भी इस तरह की एक सिचुएशन हमें नागालैंड में देखने को मिलती है, और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मिलिट्री ऑप्शन इसका सॉल्यूशन नहीं है। मिलिट्री सॉल्यूशन कभी नागालैंड के प्रश्न को सुलझा नहीं सकता है, लेकिन हम इसको दूर से देख भी नहीं सकते। अगर मिलिट्री द्वारा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये बात भी सही है कि सिर्फ दूर से देखते रहना और जो चीज 40 साल से चल रही है उसको चलाते देने रहना, वो भारतीय राज्य के लिए और ऐसे भारतीय राज्य के लिए कि जो एक महासत्ता बनने का सपना देख रहा है, उसके लिए जरूर ये बात कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। तो देवांग भाई, आपने जो बात कही कि नागालैंड में पैरेलल सरकार चल रही है या नहीं, तो जरूर मैं कहूंगा कि कई नागालैंड के जिले में ये पैरेलल सरकार चल रही है। सिर्फ एक्सटोर्शन नहीं है, वहाँ उनके कलेक्टर भी अलग होते हैं, उनके जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है वो भी अलग होती है। तो जिसको कहे ना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन भी ये नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल की जो पैरेलल गवर्नमेंट है उसके द्वारा वहाँ प्रस्तावित किया गया है। देवांग भाई, बिल्कुल। तो सत्यजीत जी ने एक सवाल पूछो है। सत्यजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक का भी समय हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे सवाल पूछूं और कंटिन्यूटी अपनी हो, इसलिए एक ब्रेक के बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। दर्शक मित्रों, नागालैंड ઉપર અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, શાંતિ સમજોતા થયા, બંને એક્સપર્ટ્સે કીધું છે કે મિલિટરી એ કોઈ ઓપ્શન્સ નથી આ સમજૂતી ને સોલ્વ કરવા માટે, પરંતુ 7 દાયકા થઈ ચૂક્યા છે અને હજુ પણ આ પ્રોબ્લેમ ત્યાંનો ત્યાં યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। તો આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન શું છે અને ખરેખર ત્યાં પ્રોબ્લેમ શું છે, આગળ વિગતવાર જાણીશું એક બ્રેક બાદ। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે શાંતિ વાર્તા પર ગ્રહણ। આ વિષય આપણે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને ચર્ચાને આગળ વધારીએ તો આપણા જે મહેમાન છે એન સत्यजीत जी, હું સીધો એમની પાસે જવા માંગીશ। सत्यजीत जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि गुजरात की नंबर 1 चैनल और नंबर 1 डिबेट के आप पहली बार जो हिस्सा बने हो, तो तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस पैनल में। थैंक यू। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस विषय के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, तो तकरीबन 70 साल हो गए, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी भी हम नहीं निकाल पाए हैं। 1955 में हमने वहां पे लश्कर भेजा, उसके बाद अफस्पा भी लगाया, उसके बाद हमारे नेता और उनके बीच कुछ करार भी हुए, हस्ताक्षर भी हुए, 16 समझौतियां हुई, लेकिन उसके बाद भी
ये प्रॉब्लम्स अभी वही का वही है। जी सत्यजीत जी। अच्छा देखिए, मैं इस इशू से आने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया सब दर्शकों के लिए मैं देना चाहता हूँ। ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये बिफोर 1947 यहाँ पे 3 स्टेट्स थे। एक तो असम, मणिपुर, एक त्रिपुरा। ये तीनों जो स्टेट्स है ये इंडिपेंडेंट किंगडम थे बिफोर 1947 जी। तो जब 1947 से थोड़े से पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, तो जब 1946 में नागा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नागा, मणिपुर और असम। तो इसमें क्या हुआ कि मणिपुर वालों ने 1947 में इंडिपेंडेंट होने के बाद ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता है कि उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख दिया, अपना बना दिया, और इलेक्शन भी हो गया, और इसके बाद अपना एक नेशन हो गया मणिपुर। फिर ये 1949 में इंडिया के साथ मर्ज हुआ है। तो इसके बाद मणिपुर का इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसमें ये मणिपुर का प्रॉब्लम खत्म होता है। फिर दूसरा इश्यू है नागा इश्यू। नागा इश्यू क्या हुआ, ये नागालैंड जो है, ये नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जो है, ये असम, ये सब असम के अंदर थे। तो ये असम से सब डिवाइड होके एक स्टेट बना है बाद में। नागालैंड 1966 में बना है, मिजोरम काफी देर के बाद, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो नागा इशू में क्या है कि ये जो नागा इशू है, ये जो नागा ट्राइब जो है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आप गुजरात कहते हैं, गुजराती कहते हैं, मराठी कहते हैं, तो आप समझेंगे कि एक ही लोग है। मगर ये जो नागा जो है, इसमें बहुत ट्राइब्स है। मतलब शुरू में तो ओनली 16 to 20 ट्राइब्स था, अभी तो मोर देन 60 ट्राइब्स है। ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। फिर इसके बाद ये क्या हुआ कि ये जो नागा कम्युनिटी है, ये म्यांमार में भी है, मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, असम में भी है, हर एक स्टेट्स में है। तो इसमें से दो चीजें निकल के आया कि एक जो आइडिया है कि ये जो अभी जो नागालैंड है, इसका इशू सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर दूसरा ग्रुप निकलता है, जैसे कि NSNIM, ये कहते हैं ये जो सब जो है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर म्यांमार, ये सब यूनाइट होकर एक नागालैंड बनाना चाहिए। ऐसे करके दो कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो इसके बीच में इंडिया गवर्नमेंट के साथ 1946 से फिर 2005 तक बहुत एग्रीमेंट हुआ है। 1966 में हुआ है, 1975 में शिलोंग एकॉर्ड हुआ है। जो लेटेस्ट है वो 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और NSNIM के लीडर के साथ दिल्ली में एक नागा पैक्ट हुआ है। इसमें क्या है कि अभी जो इनके बीच क्या हो रहा है कि ये जो नागा जो है, ये बोलता है कि दे इंडियंस नहीं है, दे आर नॉट इंडियंस। ये बोलता है उसके एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसका अलग फ्लैग होगा, सब कुछ अलग होगा। इसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस है, कुछ चीज इंडिया में रह के बाकी सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, करेंसी वरेंसी सब कुछ ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये नागा इंसर्जेंट सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देंगे, क्योंकि बहुत एग्रीमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एश्योर किया है कि आप जो डिमांड करते हैं वो हम आपको देंगे बोल के उनको, जैसे कि सोल्व करने के लिए उनको रखा गया है। फिर भी अभी जो डेवलपमेंट है, जैसे कि अभी जो आपने देखा होगा, कश्मीर से 370 निकाल दिया। अभी जो नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है, इसमें तो अभी तो एक यूनिफॉर्म लो, सब कुछ यूनिफॉर्म के अप्रोच में आ गया है। इससे क्या हो गया, अभी ये जो नागालैंड में अभी ये सोचते हैं कि अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अभी तो एक तो पूरा यूनिफाइड इंडिया का बात कर रहा है। इससे हमको क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन देना, एक फ्लैग देना, ये नामुमकिन है कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा सोच रहे कुछ लोग। इसलिए क्या हो गया, अभी जो नागालैंड में दो ग्रुप में बांट गया। अभी जैसे कि NNPG ग्रुप है, ये कहते हैं कि अभी जो है सही वक्त है कुछ मतलब एग्रीमेंट होने के लिए,
हमको बाहर जो मणिपुर का नागा जो है, अरुणाचल बाहर जो, उनको अलग रहना दो उनको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अभी कि उनको कैसे लेके आएगा। इसलिए अभी जो नागालैंड है इसमें से कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ लेके हम लोग को अभी खत्म करना चाहिए। मगर इसमें क्या हुआ कि जैसे कि बहुत ये जो जैसे कि NSNIM और NSN के ये बहुत पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप थे, ये कहते हैं नहीं हम इससे हम वी आर नॉट एग्री टू दैट। ये बोलता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्लैग चाहिए। इसमें अभी डिबेट करते करते बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अभी बोलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइफ थ्रेटनिंग है। मैं कुछ गलत बोल दिया तो बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए से इस चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसे मना भी नहीं कर सकते और दे भी नहीं सकते। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऐसा है कि जैसे कि कश्मीर में तो आराम से सॉल्व कर दिया, मगर नॉर्थ ईस्ट जो है जैसे मैंने पहले बताया ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे कि हम लोग जो भाषा बोलता है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग टिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम लोग का लिपि अलग है, हम लोग का टाइम जोन बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम लोग तो जैसे कि सपोज आपके अभी 9:30 हो गया, हमारे यहाँ 11:30 बजे है। वैसे तो हम इंडियन टाइम फॉलो करते हैं, फिर भी हम करीब 2 घंटा पहले है यहाँ पे, तो सब कुछ अलग है। और जो हम लोग को रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन भी बहुत कम है। फिर भी और देखिए ये जो इसको अगर गवर्नमेंट इंडिया ने अगर मना कर दिया तो इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग का जो पूरा बाउंड्री है, ऊपर यहाँ पे चाइना है, फिर इधर म्यांमार है, इधर नेपाल है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है। पूरा हम लोग जो है हम लोग का जैसे पूरा बांध के रखा हुआ है हम लोग। इसलिए अगर कुछ गलत कर दिया तो इंसर्जेंसी फिर ऊपर जा सकती है। और यहाँ का जो इंसर्जेंसी है ये बाकी इंसर्जेंसी से बहुत अलग है, क्योंकि बाकी जैसे कि आप गुजरात में देखिए, दिल्ली में देखिए, बाकी जगह में ये सब प्लेन एरिया है। हम लोग का जो जगह है ये मोस्टली जो नागालैंड है वो पूरा नागालैंड हिल एरिया है, मतलब दिल्ली बिल्कुल ही नहीं है। पूरा टीरेन जो है पूरा हिल एरिया है। आपको वहां पे रेलवे नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। मणिपुर में अभी तक रेलवे नहीं आया है। मतलब पूरा हिल एरिया में मिलिट्री को ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल होता है। आप 1 किलोमीटर जो वैली में एरिया और 1 किलोमीटर जो हिल एरिया में वो बहुत अंतर है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कंट्रोल करने में बहुत पैसे चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए मणिपुर में आप देखिए कितना 1 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री है, नागालैंड में उतना ही मिलिट्री है। मतलब ये इनको अगर सोल्यूशन नहीं लाया तो ये जो मिलिट्री है पूरा यहाँ पे सब पैसा चला जाता है। इसलिए अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये फंस गया। मतलब उनको अगर ये बोलेंगे कि जो तुम डिमांड कर रही हो नहीं देगा तो वायलेंस शुरू हो जाएगा। अगर और जो ये जो डिमांड कर रहा है अगर ये देगा तो इंडिया जो है बिल्कुल वैसे कि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मतलब अगर ये जो डिमांड करे हो तो अलग कंट्री है, अगर उनको दे दिया तो मणिपुर वाला फिर बोलेंगे, फिर असम वाला, असम में भी बहुत है, उल्फा है, फिर अरुणाचल में थोड़ा थोड़ा है, अभी उतना नहीं है, त्रिपुरा में भी है, और असम में तो 2-3 है, कार्बी आंगलोंग है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब मैं 1-2 घंटा में नहीं बोल सकता, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा ट्राइब्स है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कम्युनिटी है। और अगर आप नागा इश्यू में बोले तो भी नागा में भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपको बोलेगा भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का जो ट्राइब्स है नागालैंड में ओनली 16-17 ट्राइब्स है। हर एक ट्राइब का एक अपना अपना आइडेंटिटी है, अपना अपना ग्रुप है, अपना अपना लॉ है, अपना अपना ट्रेडिशन है। मतलब तो थोड़ा उसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा मुश्किल भी है, मैं यही कहूंगा अभी शुरुआत में। चलो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अब कब वहां पे शांति होती है ये भी देखना रहेगा। व्याजी मुद्दो घणो ज अटपटो देखाई रह्यो छे, जेम सत्यजीतजीए कीधुं एम के सरकार पण जो एक वखत कमिटमेंट करी दे અને જો પછી એ પૂરું નહીં થાય તો પણ ત્યાં વિરોધ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે। અચ્છા, આવું છું આપની પાસે, પણ એ પહેલા અમિતભાઈ પાસે જઈને આવું। અમિતભાઈ, જે રીતના સત્યજીતજીએ જણાવ્યું કે ત્યાં ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ શું છે અને સૈન્ય દ્વારા પણ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, એ સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો લગભગ 2015માં જે નાગા પીસ એકોર્ડના આખરી મુસદ્દા અંગે બધા પક્ષો વચ્ચે એક સમજૂતી થઈ અને એમાં તત્કાલીન ગવર્નર રવિની મધ્યસ્થી તરીકે નિમણૂક પણ થઈ, પણ આ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર થાય એ પહેલા જ NSCN-IM અને રવિ વચ્ચે મતભેદ થયા અને આખો માહોલ બગડી ગયો। હવે સવાલ એ છે કે નાગા સંગઠનોએ અલગ બંધારણ, અલગ ધ્વજ અને નાગાલેન્ડની વર્તમાન સરહદથી પણ આગળ ગ્રેટર નાગાલેન્ડ સ્ટેટની માંગણી ચાલુ રાખી છે અને
ઉલટું નાગાઓએ અનેક સરહદી જિલ્લાઓમાં અતિક્રમણ પણ કર્યું છે. આ અંગે આપનું શું કહેવું છે? जी 2015 में और 16 में जब ये बातचीत हुई और एग्रीमेंट भी हुआ, भारत सरकार और NSCN का जो इसाक मूविया फैक्शन है वो, तो एक आशा का किरण पूरे उत्तर पूर्वी भारत में जगह था कि शायद इस बार ये प्रश्न का सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि जैसे व्यास जी ने बताया, सत्यजीत जी ने भी बताया कि लगभग 7 दशक से कई प्रयास किए गए लेकिन कोई सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा है. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नागालैंड के गवर्नर श्री रवि, जो खुद एक सीनियर IPS ऑफिसर रह चुके थे केरला काडर के, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल जी के साथ भी उन्होंने IB में बहुत काम किया है और ये पूरे प्रश्न की नजाकत से वो वाकिफ है. और उनके सन्निष्ठ प्रयास के बावजूद भी वो NSCN को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि 2015 का जो एकॉर्ड हुआ उसकी शर्तों के हिसाब से अभी एक फाइनल एग्रीमेंट करें. मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें श्री रवि का दोष निकालना चाहिए, परंतु भले इसका एविडेंस नहीं है कि NSCN को इस तरह की जो एक हार्ड स्टैंड लेने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर. संभावना यह है कि ये ताकतें भारत की बाहर है जो ये चाहती है कि ये समझौता ना हो भारत सरकार और NSCN के बीच, जिसमें म्यांमार स्थित जो NSCN का राइवल फैक्शन है वो भी हो सकता है. और संभावना ये भी है कि चाइना का भी ये शायद मकसद है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो एक पॉट है वो हमेशा बॉइलिंग रहे, वहां पर कुछ ना कुछ समस्या चलती रहे. तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास अब विकल्प बहुत कम रह गया. नागालैंड की समस्या एक तरह से देखा जाए तो कश्मीर की समस्या से भी ज्यादा पेचीदी है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और सटल है. कश्मीर में इतने स्टेक होल्डर्स नहीं है जितने नागालैंड में है, और नागालैंड में खुद में लगभग 19 ट्राइब्स है और ये 19 ट्राइब्स एक साथ नहीं है, यूनाइटेड नहीं है. उन सब का एजेंडा अलग अलग है, उन सब के ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग है, उन सब की अपेक्षाएं भी अलग अलग है. साथ में भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसीज तो अपनी है कि जो एक वहां के बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, वहां की राज्य सरकार है वो भी एक स्टेक होल्डर है, और बाहर से देखा जाए तो म्यांमार और चाइना भी स्टेक होल्डर है, और साथ में आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनकी जमीन पर भी NSCN अपना दावा कर रहा है. तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कैसे बाहर निकले उसका कोई आसान सॉल्यूशन नहीं, उसका कोई 2 लाइन में सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते हैं, परंतु ये सॉल्यूशन की ओर जाने के लिए एक अभिगम तो जरूर हमें अपनाना पड़ेगा. वी कैन नॉट लीव दिस होल प्रॉब्लम अनएड्रेस. तो वो सॉल्यूशन का जो अभिगम होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि वो बॉटम अप अप्रोच और अभिगम होना चाहिए. सिर्फ बंदूक चलाने से, सिर्फ मिलिट्री को फ्री हैंड देने से नागालैंड की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि कोई भी इस तरह की समस्या मिलिट्री नीड से हल नहीं हो सकती है. हमें अल्टीमेटली लोगों का दिल जीतना, लेकिन लोगों का दिल जीतना यानी क्या करना? फंडामेंटली हमें ये बात समझनी है कि नागालैंड की समस्या के मूल में क्या है. उसकी समस्या के मूल में कल्चरल आइडेंटिटी और राइट्स फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ नागा ट्राइब्स. इसकी जो खेवना है वो ये है कि भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रवाद के साथ ये कल्चरल आइडेंटिटी जो NSCN डिमांड कर रहा है वो मानते हैं कि उसमें वो पनप नहीं सकती. हमें
वहां के लोगों को कन्विंस करना है कि भारतीय संविधान सक्षम है, भारतीय व्यवस्था ऐसी सक्षम है कि नागालैंड की ट्राइब्स की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको कोई खतरा नहीं पहुंचेगा अगर ये अकॉर्ड होता है तो। बल्कि भारत के कई ऐसे राज्य और भारत की इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है कि जो ये संविधान के अंदर ही प्रोटेक्ट हुई है, और नागालैंड की ट्राइब्स को ये कन्विंस करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट दे नीड नॉट वरी अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चरल राइट्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहां पर अलग फ्लैग और अलग कॉन्स्टिट्यूशन देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान परमिट भी नहीं करता है और भारत के लिए इच्छनीय भी नहीं है कि कोई एक राज्य को अलग संविधान और फ्लैग की हम अनुमति दे। और भारत इतना तो सक्षम है कि ये इस अनुमति के सामने वो लड़ भी सकता है अगर कोई भी लोग ये डिमांड कर रहे हैं तो हमें बॉटम अप अप्रोच करना है और डेवलपमेंट शुड बी अनदर अप्रोच। पहली जो मैंने बात की वो ये है कि वहां के लोगों को कन्विंस करना है बिल्कुल कि उनके कल्चरल राइट्स और आइडेंटिटीज को भारतीय संविधान की फ्रेमवर्क में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 20 लाख की पॉपुलेशन होने के बावजूद वहां पर विकास और डेवलपमेंट अभी तक पहुंचा नहीं है। बिल्कुल इसके मूल में कई कारण है, लेकिन जैसे गुजराती में कहते हैं जाग्या ત્યાંથી સવાર, એટલે ભૂતકાળની વાતોને હવે ભૂલી જઈએ, પરંતુ આવનારા સમયમાં આટલી બધી જે વેલફેર સ્કીમ્સ છે અને નાગાલેન્ડ પાસે પૈસા તો પુષ્કળ ખર્ચા કરવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા, પણ પૂરા ઉત્તર પૂર્વી રાજ્યો પાસે બિલકુલ તો એ પૈસાના લાભો, એ વિકાસના લાભો કેમ સામાન્ય વર્ગો સુધી નથી પહોંચ્યા, કેમ આજે પણ ત્યાં બેન્કિંગ સિસ્ટમ નબળી છે, વેલફેર સ્કીમ્સ નબળી છે, પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમના લાભ કેમ નથી પહોંચી શકતા ગામડાના છેવાડાના વર્ગ સુધી, તો ભારત સરકારે વિકાસના માર્ગે પણ પ્રયાસ કરવા જોઈએ। તો મને લાગે છે કે ધીરે ધીરે એક માહોલ ઉભો થશે, એક માનસિક વાતાવરણ બદલાશે, જેમાં NSCN ઉપર પણ એક પ્રેશર ઉભું થશે કે હવે ઇન્સર્જન્સી અને હિંસાનો માર્ગ છોડી ફરી પાછું આપણે વાટાઘાટો દ્વારા આ પ્રશ્નના કોઈ કાયમી સોલ્યુશન તરફ આવવું જોઈએ। દેવાંગભાઈ बिल्कुल व्यास जी आपने पास आगू पहला सत्यजीत जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बात सही है कि NSCN इनको चिन्ह शस्त्र दे रहा है या तालीम दे रहा है, और शांति वार्ता आगे बढ़े और शांति वहां पे कायम हो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? दूसरा एक सवाल आपसे ये पूछना है कि पिछले दिसंबर में जो 14 सिविलियंस को मार गिराया था लश्कर ने, वो जो आइडेंटिटी की वजह से फिर वहां पे लोगों में रोष देखने को मिला था भारतीय लश्कर के खिलाफ, कैसे देखते हो आप? जैसे कि आपने बताया कि ये जो रोल जो हम लोग का नेबरिंग कंट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक तो ये जो नागा जो है और जो जैसे कि मणिपुरी है, असमीज है, ये सेम भाषा बोलने वाले और सेम इथनिक ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में है और म्यांमार में है, और इसलिए जो यहाँ के लोग जो है वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। और जैसे कि अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो चाइना बहुत नजदीक है यहाँ से, इसलिए यहाँ का लोग और चाइनीज जो है जो इंडिपेंडेंस से पहले रिलेशन बहुत अच्छा था, और यहाँ के मणिपुर के जो किंग जो है उनका वार होता था। बिफोर 1947 हम लोग का जो कम्युनिकेशन है, हम लोग का वार जो है, हम लोग का रिलेशन जो है इस तरफ हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ होता है तो यहाँ भाग के आराम से ये लोग छिप सकता है। इसलिए और चाइना का जो रोल है, ये शुरू में चाइना को रोल ओपनली उनको सपोर्ट किया है। जैसे कि देखिए अगर मणिपुर के इंसर्जेंस हो या उल्फा हो और ये नागालैंड हो, ये सब चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। और जो यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है जो नॉर्थ ईस्ट में, ये सब थोड़ा सा कम्युनिज्म और सोशलिस्ट मूवमेंट में थोड़ा सा नजदीक है। और आप देखेंगे तो उनका जो आर्म्स है, एमुनिशन है, इस तरफ से बहुत आता है। मगर अभी जो मॉडर्न इरा है, चाइना बोलता है कि अभी तो हम नहीं देते, ऐसे कुछ चाइना इसके इन्वॉल्वमेंट से अभी ये डिनाई करते हैं। फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, तो गवर्नमेंट बता सकता है कि ये आर्म्स वगैरह कहाँ से आता है, कि इतना जो आर्म्स एंड एमुनिशन इनके पास जो है ये कोई देता है इसलिए तो ये लोग पकड़ता है। मगर हमको ये देखना है कि कौन देता है। मगर जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका जो हम लोग का जो ह्यूमन रिलेशंस है, गवर्नमेंट रिलेशन है, बांग्लादेश और म्यांमार और चाइना में
हम लोग जो इथनिक ग्रुप, सिमिलर इथनिक ग्रुप्स हैं और रिलेशन बहुत अच्छा है, इसलिए ये आर्म्स वगैरह लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया कि अभी क्या हो सकता है, अभी जो हो सकता है कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स है, मतलब ये जो नगा मूवमेंट में जो अभी जो इन्वॉल्व है, अभी ये सब बहुत ग्रुप्स है, जैसे मैंने बताया, जो एक ही जो नागालैंड के अंदर रहना चाहता है, फिर दूसरा जो पूरा यूनिफाइड नागालैंड चाहिए, तो बहुत ग्रुप्स है। उन सबको अभी सरकार को उनसे बात करना शुरू करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बातें करता है, ये ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम पे शुरू करता है। जैसे देखिए अभी नागालैंड में अभी 1-2 साल में अभी अगले साल अभी इलेक्शन है, इसलिए ये सब चर्चा शुरू हो गया है। इलेक्शन के टाइम पे ही आता है ये सब, फिर 5 साल बिल्कुल चुप रह जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ पूछने से भी कुछ नहीं बताएंगे। तो हम लोग का जो इलेक्शन मौत है कि अगर कुछ मुद्दा होता है तो इलेक्शन के टाइम पे ही आता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो लोगों हैं, जो कॉमन सिटीजन है, उनको बहुत नुकसान होता है। कि जैसे कि देखिए जो लीडरशिप है, अगर जो मिलिटेंट लीडरशिप है, गवर्नमेंट के लीडरशिप, वो तो आराम से रहते हैं, मगर जो जैसे कि अगर जो आपके कलीग्स ने जो उठाया कि यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन वगैरह है, ये तो नॉर्मल सिटीजन्स को बहुत नुकसान होता है। देखिए नागालैंड के लोगों को, गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है, फिर बहुत सारे इंसर्जेंस ग्रुप्स है, उन सबको भी देना पड़ता है। तो देखिए उनको कितना मुश्किल होगा। इसलिए जितना जल्दी हम इस नागा इंसर्जेंस को अगर सॉल्व करें, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियरली सॉल्व करे, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जो नागा इंसर्जेंसी है, ये मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंस कहे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, इनका वेपन्स बहुत ज्यादा है, उनके कैडर बहुत ज्यादा है। और ये जो अभी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कुछ जो नागालैंड का जो यूथ मरा है, इस पे से नागालैंड में अभी बहुत गुस्सा है। क्योंकि आप देखिए जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये जो ऐसा एक्ट है जो 1942 में ब्रिटिश ने इंडिया पे लागू किया था। इस एक्ट के अंदर आप किसी को भी मार सकता है, मतलब इसके बाद आप कोर्ट में नहीं जा सकते, फिर आप मुकदमा कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें ये है कि अगर आपको जो मारेगा, बाय गिविंग ओनली वन वार्निंग आपको, और वो भी एक सस्पिशन से किसी को भी मार सकते हैं अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल। इसलिए यहाँ के लोग जो है, इसलिए आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि अगर कोई आप किसी को भी आप मियर सस्पिशन पे मार दिया जाए, तो इसमें से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसलिए जो अभी जो इसमें जो नागालैंड जो है, इसका जो गवर्नमेंट है, देखिए ये कितना, इसने क्या बोल दिया अभी कि उसने FIR कर दिया है अगेंस्ट मिलिट्री, जिसने भी जो फायर किया है। इसके अबर और नागालैंड गवर्नमेंट के उसके DGP ने अभी चार्जशीट फाइल किया है कि जो भी इन्वॉल्व है, जो इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर एक्शन लेंगे बोल के नागालैंड गवर्नमेंट बोल दिया है। अब जैसे कि ये तो बहुत, आप ये अगर बाकी स्टेट के लोग अगर सुनेंगे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर एक स्टेट ने आर्मी के अगेंस्ट कुछ बोला है, तो बाकी स्टेट में तो हंगामा हो सकता है। लेकिन मगर नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा होते रहते हैं। और नागालैंड गवर्नमेंट ने तो उनके ऊपर अभी कोर्ट केस चला दिया है, अभी देखना पड़ेगा। मगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये सोल्यूशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंसियरली अगर करे, ये नहीं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इलेक्शन के टाइम पे थे, अगर ये सिंसियरली डिबेट करे, उनको टॉक्स करे, आपको क्या चाहिए, जो आप जो बोल रहे हो तो हम नहीं दे सकते ओपनली, कि ये नहीं कि हम आपको देगा बोल के आपको ताकते रहे, फिर अगले साल मिटेंगे, फिर अगले साल बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब सिंसियरली ये ओपनली उनको बताना है कि आप जो मांग रहे हो तो हम नहीं दे सकते, ऐसा उनको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आपको देंगे, आप जो भी बोल रहे हैं देंगे बोल के बाद में हम बोलेंगे नहीं देंगे, तो ये सब गुस्सा होकर चले जाएगा। इसलिए इन सबको एक साथ बैठ के, मगर इसमें सबसे चाहिए ऑनेस्टी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और उनको ये बताना है कि पीस और एक पूरा ये जो नेशन जो है, इंडिया जो है, हम इसको यूनाइटेड रहना है। और ये जो कर रहा है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया इज ए वेरी मॉडर्न कंट्री, बहुत डेवलप हो रहा है, हम सबको एक साथ रहना है। अगर मैं कुछ भाषा बोलता हूँ, अब दूसरा आप कुछ भाषा बोलते हैं, तब भी हम लोग
यूनाइटेड रहना चाहिए। ऐसे मैसेज जो है उनको अभी यूथ वगैरह को, यूथ को ये मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल सर। हिंदी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं पता बिल्कुल है। बिल्कुल, प्लीज कैरी ऑन, बिल्कुल समझ रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मतलब ये सिंसियर होना चाहिए। ये जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शन के टाइम पे ये बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिंसियरली बोलना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं ये बहुत शांत प्रिय है, पीस लविंग है, ये नेचर से बहुत रिलेटेड करते हैं। और मतलब वो जो नागालैंड है, ये मणिपुर और असम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नागालैंड, मणिपुर और असम में ये नॉन ट्राइबल बहुत है। और मगर नागालैंड जो है पूरा सब का सब ट्राइबल्स है। मतलब उनका जो दिल है बिल्कुल साफ है, अगर वो ना बोले से ना है। मे भी हो सकता है ये बात उनके मन में नहीं है। जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी वगैरह उनको समझ में नहीं आता, ये तो बोलता है होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंपल ट्राइबल है। अगर साफ दिल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि हम ये आपको दे सकता है, आप जो मांग रहे हो हम नहीं दे सकता, साफ बोले, तो उनको ये कुछ नहीं बोलेंगे। और शांत, मेरे ख्याल से एक सोल्यूशन तो जरूर आना चाहिए, मगर सिंसियरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं यही कहूंगा। सिंसियरिटी सब બિલકુલ વ્યાસજી શું કહેશો, કારણ કે સિન્સિયરિટી ઉપર ભાર મૂક્યો છે, શાંતિ વાર્તાઓ તો અઢળક થઈ પણ હજી સુધી પરિણામ શૂન્ય મળ્યું છે, શું કહેવું છે આપનું? जो हमारा बेचार मुद्दा जो सत्यजीत जी ने कहा, उन्होंने जो बोला उसमें से निकल के आते हैं। पहली बात तो यह है कि ये डिफिकल्ट टेरेन है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आप आसानी से नहीं लगा सकते जी। दूसरा मुद्दा है कि ये आज तक का काफी चक्कड़ प्रश्न हो चुका है। 1950 से लेकर आज तक भी इसमें विविध स्वरूप आते रहे, विविध हाइपोथेसिस आती रही है, चर्चाएं होती है, चर्चाएं बंद होती है, फिर कुछ और नया ग्रुप, इसमें से 3 ग्रुप हुए नागा पीपल्स पार्टी में से। तो ये जो चीजें हैं उसको आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि किसी एक ग्रुप को मंजूर है वो पीस अकॉर्ड विल नॉट होल्ड वाटर। दूसरी बात है कि आप जो भी करना चाहे, पहले ये आसपा जैसे कायदों को हटाना होगा, क्योंकि सिंपली ब्रिटिशर्स वो करते थे, सिंपली किसी पे अंदेशा है, किसी पे आपको शक है, आप गोली मार दो और आपको इसके लिए कोई दोष नहीं लगेगा। ये ऐसा ही कायदा ऑस्ट्रेलिया में था, जब एबोरिजिनल को आप मार दो तो सादोष मनुष्य का गुनाह नहीं लगता था। तो ये जो बात है, ये बात में मैं मानता हूं कि ऑफ कोर्स दीज आर मैटर्स ऑफ लार्जर कंसिडरेशन एंड कंसर्न, मगर ये इसका एक कब से मांग चली आती है कि अस्पा को निकालो, तो ये बारे में भी सोचना होगा। तीसरी बात, वहां मैं मानता हूं कि अभी एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ विद्रोही वलन चलता है। एक असम का नेबरिंग स्टेट के साथ अगर शस्त्रों के साथ मुठभेड़ हो जाए तो क्या कहोगे आप? ये महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर पे दोनों के जैसे बाशिंदे खड़े हैं और एक दूसरे के सामने फायर कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें हैं, हम बहुत आशा अपेक्षा से हमारे गवर्नर साहब को वहां भेजते हैं, बट आई थिंक इट विल नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। Maybe what Jagmohan did in Kashmir, or maybe somebody else would do here in this side, but it's not going to be an easy issue. Confidence building will take a lot of times, because the history is that of falling through. तो आप कैसे confidence building करेंगे? That is the art of negotiation. बिल्कुल। तो सत्यजीत जी ने जो बात कही, हम मानते हैं कि इस पार्ट ऑफ द कंट्री वी नो वेरी लिटिल अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड देयर माइंड। बिल्कुल। आज हमने रियल सेंस में हमारे दर्शकों के सामने वहां से वो विस्तार को जानने वाले और ट्राइब्स को जानने वाले सज्जन को, एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, इनको हमने निमंत्रण दिया और आज हमने दर्शकों के सामने एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप आसाम, आप कश्मीर से आप निकालते हैं 370 और यहाँ आसपा चालू रहता है और चालू रहता है, तो हर जगह पे ये भी एक देश का ही सवाल है
कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेगा, बिल्कुल। और इस प्रश्न को हमें कहीं ना कहीं जाके उसको सुलझाना होगा। तो मैं मानता हूं कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग गोइंग नेगोशिएशन, बट आई एम नॉट पेसिमिस्ट। Every problem has a solution. Any problem is born with a twin brother called solution. Some get it solved early, some get it solved later. बिल्कुल। We need not blame China for everything, because China तो वो हमारा कोई दोस्त कंट्री तो है नहीं जी। वो उसको फायदा मिलता है वो करेगा। उसने जैसे अरुणाचल में अपना काम कर लिया है, उसने दलवा और शॉक रिवर पे उसने करीब 624 मकान बनाए हैं जी व्यास जी। वहां बैटल रेडी एयरपोर्ट्स बनाए हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाए हैं। तो वो अपना काम करते रहे, आप अपना काम करो। हर चीज में आप ये बोलो कि चाइना ये करता है एज ए सोवरेन नेशन, सून यू आर गोइंग टू ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन, दिस डजंट लुक अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। So I think let us feel and let us hope that wiser counsel will prevail, but that will not be so soon, and that will not be so easy. Number of people who might not be actually politicians, who might not be actually civil servants, they will have to be brought together and assimilate their knowledge and work out on this issue with lot of patience. બિલકુલ. Devang તો દર્શક મિત્રો, શાંતિ વાર્તા પર ગ્રહણ આ વિષય ઉપર આપણે ચર્ચા કરી અને ત્રણેય મહાનુભાવોએ પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રાખ્યા અને ખાસ તો જે વરિષ્ઠ પત્રકાર છે મણિપુરમાં એન સત્યજીતજી, આજે આપણે એમણે પણ પૂછ્યું કે ખરેખર ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર ત્યાં રિયાલિટી શું છે એ પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને દેશને આઝાદ થયા 7 દાયકા પછી પણ જો પરિસ્થિતિ ઠેરની ઠેર હોય તો પ્રોબ્લેમ શું છે, જે આજે નિષ્કર્ષ બહાર આવ્યો છે કે શાંતિ વાર્તા ચાલુ રાખવી જોઈએ, કોઈ વાંધો નથી, પણ સિન્સિયરિટીથી। જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે તમે શાંતિ વાર્તા કરો, ખોટા વાયદા વચન આપો તો નહીં ચાલે। વિકાસમાં એમને પણ ભેળવવા પડશે અને જે વાયદા કે જે વચન આપો એ પૂરા કરવા પણ પડશે અને આ વાર્તા કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખવી પડશે। ઇલેક્શન આવે કે અમુક સમયે જ એમની સાથે વાર્તા કરવી જરૂરી નહીં। સિન્સિયરલી આ મુદ્દો સમજવા જેવો છે। વેલ, આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને અમિતભાઈ આપનો વ્યાસ Devangભાઈ, જી I just wanted to thank profusely जी Satyajit Singh. He is joining us for this my show for the first time. जी And Satyajit Singh, I look forward to your support and participation in the times to come. We will be very happy to have you with us. Thank you. और एक वचन भी हम आपसे लेंगे कि हम जब बुलाए तब फिर से हम आपका लाभ ले सके, तब आप आओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ત્રણે જણાનો આભાર। દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે આપ જોતા રહો GS TV। નમસ્કાર।